Okay, welcome back to weekly webinar cum training session of Ralakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Ralakshmi Solutions, I would like to welcome all the attendees here. I am Rinki, representing Ralakshmi Solutions Private Limited. Today we are going to talk about edit log in Tally Prime. So before moving the topic, we have let's take introduction of Ralakshmi Solutions Private Limited. We are in multiple segments like sales, service, solutions, implementation, and development. We are in multiple softwares, Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM, and Skill India. So, moving ahead with the today's topic. So, now the speakers are here. Presentation will be conducted by Pinash. So, Pinash, are you here? Yes, ma'am. Yep. And live demonstration by Payal. So, Payal, are you here? Yes, ma'am. Yep. Good evening, Payal. So, hereby welcome all of you. So now request to Pinash and Payal to move ahead with your presentation. Hello. Good evening, all. Myself, Pinash Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited, on behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants present here. So, moving ahead to our today's topic is edit log in Tally Prime. Audit trial or edit log feature in Tally Prime. All the company information and business transaction that you maintain in Tally Prime are safe. However, you can provide additional security by adding a username and password. Only Tally user with those credentials can access your business information. Moreover, you can create user in Tally Prime with different level of access. Tally Prime में सभी कंपनी इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन सेफ है. आप यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. इन क्रेडिशनल में टैली यूजर ही आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा आप टैली प्राइम में एक्सेस के डिफरेंट लेवल के साथ यूजर क्रिएट कर सकते हैं. टैली प्राइम एडिट लॉग कैपेबिलिटीज. Ability to view and edit log of modification done to the transaction and master in sequence. Edit log में ट्रांजैक्शन में किए गए मॉडिफिकेशन और सीक्वेंस में मास्टर को देखने की एबिलिटी है. Ability to filter, report to view the altered, deleted, cancelled transaction. एडिट लॉग में अल्टर किए हुए, डिलीट किए हुए और कैंसिल किए गए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए रिपोर्ट को फिल्टर करने की एबिलिटी है. Will the user be able to disable the edit log capability in the Tally Prime edit log product? The MCA notification clearly states that an accounting software with audit trial capability should not have any option to disable it. Therefore, it is an inbuilt capability available in the Tally Prime edit log product. For the user who do not fall under the purview of MCA rules, will use Tally Prime 2.1, in which you have an option to enable the edit log feature and keep a trial of activities in transaction, ledger, stock item, group for इंटरनल कंट्रोल पर्पस. MCA नोटिफिकेशन के अनुसार ऑडिट ट्रायल कैपेबिलिटी वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसे डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए. इसलिए ये टैली प्राइम एडिट लॉग प्रोडक्ट में अवेलेबल एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी है. उन यूजर के लिए जो MCA रूल के अंडर में नहीं आते हैं, वो टैली प्राइम 2.1 का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एडिट लॉग फीचर को इनेबल करने का ऑप्शन है. Can we track all the edit log information in a single report? All the edit log will be captured and maintained at the transaction level. However, to simplify you to identify those transactions that have edit log, you have provided an option to filter altered transaction in daybook and ledger voucher report. Once the filter is applied,
You will get the list of all alter transaction including deleted ones. एडिट लॉग में डे बुक और लेजर रिपोर्ट में अल्टर ट्रांजैक्शन को फिल्टर करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। एक बार फिल्टर अप्लाई हो जाने के बाद आपको सभी अल्टर ट्रांजैक्शन लिस्ट मिल जाएंगी, वो भी डिलीटेड ट्रांजैक्शन के साथ। Now it's time for the live demonstration. I request Payal to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you, Finas. Hello everyone, myself Payal Mistry, representing live demo of Rajlakshmi Solutions Private Limited. My screen is visible, ma'am? Yes. Okay. हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है टैली एडिट लॉग इन टैली प्राइम। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि टैली ऑडिट ट्रायल का टैली ऑडिट ट्रायल का अभी टैली प्राइम में बहुत यूजफुल है। जैसे कि हम लोग ट्रांजेक्शन कुछ भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो वो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे शो करता है। देन अगर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ऑडिट ट्रायल की, जो मल्टी यूजर लाइसेंस यूज करते हैं या फिर ऑडिटर लाइसेंस यूज करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जैसे कि अभी जो सिंगल यूजर लाइसेंस यूज कर रहा है या फिर मल्टी यूज कर रहा है फिर ऑडिटर यूज कर रहा है, वो सब लोग यहाँ पे टैली प्राइम एडिट लोग यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑडिट ट्रायल करके कंपनी क्रिएट की हुई है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एंट्री करके रखी हुई है, सेल्स की एंट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी किया हुआ नहीं। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी चेंज की, यहाँ पे 100 क्वांटिटी है तो यहाँ पे 200 पीसेस करती हूँ। रेट मेरा 40 है और यहाँ पे मैं 50 करती हूँ। अगर मैं कोई और यूजर से अगर मैं ओपन करके देखूंगी तो वही ट्रांजेक्शन हम लोग के अल्टर में जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं, सेल्स, परचेस, रिसिप्ट या कोई भी एंट्री हो, वो सारी एंट्री हम लोग को डे बुक में शो करती थी। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम लोग चेंजेस करेंगे वो भी हम लोग को डे बुक में शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बेसिस ऑफ वैल्यू, वहाँ पे जाके हम लोग को ऑल वाउचर में जाना है और अल्टर वाउचर में जाना है। यहाँ पे अगर आपने कुछ जो भी वाउचर्स अल्टर किए हैं या फिर कोई डिलीट किए हैं या फिर कैंसिल किए, वो सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एक एंट्री में चेंजेस किया था। ये देखिए, जैसे कि एंट्री में ओपन करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्टर डे बुक लिस्ट ऑफ अल्टर वाउचर, यहाँ पे आपको जितने भी वाउचर आपने अल्टर किए वो सारे यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि मैंने ये एंट्री में एंटर किया एंड देन अल्ट क्यू करती हूँ तो देखिए यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन दिया गया है। ए कंपनी करके मैंने इसको यूजर दिया था और मैंने ही फिर से उसको चेंजेस किया। अगर आपका कोई यूजर आपके नाम से एडमिन के पासवर्ड से कोई आप चेंजेस करते हैं फिर भी वो यहाँ पे शो करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्रीवियस रिकॉर्ड एंड अल्टरेट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने स्टॉक आइटम में 8 चेंजेस किया था, यहाँ पे 40 पीसेस था, यहाँ पे मैंने 50 पीसेस किया। तो ऐसे ही एज इट इज सारे यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो सारे यहाँ पे शो करता है। जैसे कि बहुत सारे जन को क्वेरी थी कि हम लोग अगर कोई भी वाउचर या फिर ई वे बिल जनरेट हो या इनवॉइसिंग जनरेट हो तो चेंजेस में जाता है, अल्टर में जाता है कि नहीं। ऐसे अल्टर में जाता है। अगर जैसे कि हम लोग इनवॉइसिंग का बिल बना के वो सेव करते हैं, लेकिन वो सेव होने के पहले उसमें ना रेफरेंस नंबर था, ना IRN नंबर जनरेट था, ना कुछ भी था। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके चेक करोगे तभी आपको शो करेगा कि वहाँ पे IRN नंबर या फिर आपका अकाउंट रेफरेंस नंबर वहाँ पे शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जनरेट हुआ इनवॉइस, उसके वजह से वहाँ पे शो करे। अगर आपका इनवॉइस या ई वे बिल अगर जनरेट होता है तो वो अल्टर में ही जाएगा। सेकंड, अगर आपका टैली नॉर्मल टैली प्राइम से अगर आप एडिट लॉग टैली प्राइम में अगर जा रहे हो तो आपका जो ऑटो नंबरिंग है वो भी चेंज हो गए। जैसे कि बहुत सारे जन को अभी क्वेरी आया है कि हम लोग के ऑटो नंबरिंग या फिर ये जो नंबर दिए गए वो चेंजेस में जा रहे हैं या फिर उसका कुछ एरर आ रहा है, तो उसका आपको कुछ भी इशू नहीं है, वो आप आसानी से वो चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा स्पेस है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, अल्टर में गई, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाती हूँ, यहाँ पे सेल्स में गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे जिसका भी ऑटोमेटिक रहेगा उसका ऑटोमेटिक मैन्युअल हो जाएगा, जिसका ऑटोमेटिक मैन्युअल रहेगा वो ऑटोमेटिक ही में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग ने यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाती हूँ, जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 अप्रैल
2022, लेकिन जिसका ऐसे ही लिखा हुआ है उन्होंने आज के अभी जैसे कि पीरियड मंथ ईयर एंड होने के बाद जिसने 1 अप्रैल से यहाँ पे मेंशन नहीं किया है 1 अप्रैल 2023 ईयरली करके, उसको ये ज्यादातर एरर आता है। इसके लिए हम लोग को सारा यहाँ से सेटअप करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी एरर वगैरह कुछ भी शो नहीं करता है, आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि आप जैसे कि पीनाज मैम ने आपको बताया कि अगर कोई एंट्री कैंसिल होती है या फिर डिलीट होती है वो भी आपको कैसे शो करती है। एग्जाम्पल देखिए ये मेरी एंट्री की हुई है, ये मैं यहाँ से कैंसिल करती हूँ, यहाँ से मैंने कैंसिल किया, देन यही सेकंड थर्ड नंबर की एंट्री मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ, ये डिलीट किया। अभी यहाँ से मैं मेरा यूजर क्रिएट करती हूँ, मैंने सिर्फ मेरा एक ही यूजर क्रिएट किया था, अभी मैं यहाँ से एक यूजर क्रिएट करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक यूजर करूंगी, चेंज यूजर, यहाँ से आप डायरेक्टली यूजर चेंज कर सकते हो, चेंज यूजर में जाके जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ से कोई एंट्री चेंज किया है फिर कुछ भी किया तो आपको यहाँ पे शो करता है। बेसिक ऑफ वैल्यू में गए, ऑल वाउचर में गए, अल्टरनेट वाउचर में गए, आपको ये जो इंक्लूडिंग डिलीट वाउचर का ऑप्शन है वो ये 80 रखना है और आपको यहाँ पे वो शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने एंट्री कैंसिल की थी या फिर डिलीट की थी वो यहाँ पे आपको शो करी, आपने कौन सी एंट्री कौन से टाइम पे डिलीट मतलब कौन से टाइम पे डिलीट किया है वो भी आपको डेट एंड टाइमिंग के साथ में शो करता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये रिपोर्ट कैसे शो करता है। एज इट इज अगर आप कोई भी वाउचर में जाके अल्टर में जाके या कोई भी यूजर कुछ भी चेंजेस करता है या फिर अल्टर करता है तो सारा सब कुछ यहाँ पे शो करता है। ऐसे सारे रिपोर्ट से एंट्री वगैरह में चेंजेस करोगे तो आपको ऑडिट के ट्रायल पे वहाँ पे चेंजेस बेस पे दिखाई देगा। थैंक यू। Thank you, Pinash and Payal. Thank you for your wonderful presentation. It was a knowledge sharing session. Thank you once again. If you have any questions, do connect to your key account manager for any support and any requirement. Thank you once again thank you so much for joining us for today's session. So now we will wind up the session. Thank you once again.